Okay, so in previous lecture, I had explained some method of preparation of alkanes in this hydrocarbon series. I had explained with the carboxylic acid. I had explained preparation of alkane for a house synthesis. Right. I was explaining with the coupling reaction, word reaction. In word reaction, I had explained. I will start this coupling reaction. How to prepare alkane from coupling reaction. इको हो रहा है तो बोलो तो नीचे अभी ठीक है, मे भी थोड़ी देर में शायद ठीक हो जाएगा, जरा चेक करो। वॉइस का प्रॉब्लम है तो नेटवर्क का हो सकता है, थोड़ा कुछ इश्यू होगा। चलिए, तो इन कपलिंग रिएक्शन I am explaining this word reaction first. और मैंने लास्ट टाइम आपको वर्ड रिएक्शन एक्सप्लेन किया था कि व्हेन अल्काइल हैलाइड, अगर दोनों सेम है तो सेम अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, सोडियम मेटल के प्रेजेंटेशन में ड्राई ईथर फॉर्म करेगा अल्केन प्लस 2Na। बट सेम रिएक्शन अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है, अनसिमेट्रिकल, तो क्या होगा। सपोज यहाँ पे मैंने X और R डैश लिया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सेम, सो इन दिस केस वी गेट द डिफरेंट प्रोडक्ट। R मिलेगा अपने को, R डैश मिलेगा, प्लस R एंड R डैश मिलेगा। So this is the mixture of the different alkanes, and it is very difficult to separate out. That's why this method is not applicable, only applicable for symmetrical, right? So I had given that example also, right? Similarly we discuss here, अब यहाँ से नया start होगा आपका, that is the second one, and it is called what? Franklin reaction. Franklin reaction. अच्छा, Franklin reaction में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे। In this case, first we write some statement here. In this reaction, two molecules of alkyl halide undergo coupling in the presence of Zn metal and ethyl alcohol. Rest of part as it is. So how to write this reaction? Look at here. Rx plus Rx symmetrical alkyl halide in presence of what? Zn and ethyl alcohol. It will give R plus
ZnX2. Just instead of this sodium, we take this zinc. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने अगर ले लिया, आई एम टेकिंग दिस मिथाइल ब्रोमाइड, वन मोर मिथाइल ब्रोमाइड in presence of same condition, okay, we'll get this what? Ethane plus ZnBr2. This is the reaction, right? What is the important note for this reaction? Franklin reaction. So for this reaction, we write here note. First, the reaction is given by primary, secondary, and tertiary alkyl halide. Huh? Given by primary, secondary, and tertiary RX. जबकि वहां पे कैसा था? Means inverse reaction, tertiary alkyl halide do not give that reaction. Huh? बट यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सारे अल्काइल हाइड देंगे. ठीक है, सेकंड वन देखो यहाँ पे. सेकंड इज व्हाट? रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स. हाँ, useful for preparation of symmetrical alkanes. Huh? थर्ड वन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. यहाँ पे नहीं होगा, वहां पे हो सकता था बट यहाँ पे नहीं होगा. डिसप्रोपोर्शनेशन reaction does not take place. Huh? Does not take place. वहां पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसा होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. बट यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होता, बट वर्ड रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों में हो सकता है और डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होता. जबकि वर्ड रिएक्शन में क्या था? टर्शियरी में वर्ड रिएक्शन नहीं होता और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो सकता है. दैट इज द बेसिक डिफरेंस. क्लियर है? चलिए, now I'm going to explain next part, that is what? Coal-base hydrocarbon synthesis. It is also one of the most important reaction. Coal-base hydrocarbon synthesis. चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं. I've done. Then next one. यहाँ पे देखते हैं हम लोग. कोल-बेस हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस. नेक्स्ट रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन का ही पार्ट है ये. And this is called what? Coal-base hydrocarbon synthesis. Coal-base hydrocarbon synthesis. ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है coal-base hydrocarbon synthesis.
तो कैसे बनता है यहाँ पे देखो, when concentrated solution of sodium or potassium salt concentrated solution of sodium or potassium salt of monobasic carboxylic acid is electrolyzed using inert electrode okay. A higher alkane is produced. चलिए रिएक्शन देखेंगे तो आपको सारी कहानी समझ में आएगी क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है. So this reaction here, so R C double bond OH OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. दिस कार्बोक्सिलिक एसिड व्हाट मोनोबेसिक, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, रिलीज कर सकता है, दैट्स व्हाट इज व्हाट मोनोबेसिक. तो मोनोबेसिक एसिड का सॉल्ट या तो पोटेशियम या तो सोडियम, ठीक है, पोटेशियम अदरवाइज सोडियम. तो इट फॉर्म, देखिए दो लेता हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे यहाँ पे. हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये भी प्लस माइनस है. प्रोडक्ट क्या बनने वाला है देखो यहाँ पे, आर आर प्लस CO2 प्लस H2 प्लस 2KOH. दिस इज आवर रिएक्शन. तो कार्बन यहाँ पे बेटा, कार्बन जो था दैट इज व्हाट कंटेनिंग n नंबर. यहाँ पे भी कार्बन में क्या n नंबर है, कपलिंग हो गया इसमें. तो यहाँ पे जो कार्बन जो अल्केन बना उसके पास कार्बन का नंबर कितना है, 2n. दैट इज कॉल्ड व्हाट, कपलिंग रिएक्शन. Important note of this is what I will explain this mechanism also, just note point करो. Note is what, CH4 जैसे वहां पे था, जहां पे भी कपलिंग रिएक्शन होगा वहां पे CH4 नहीं बनेगा. CH4 cannot be prepared by this method. This method, ठीक है. Now next one. At the end of the reaction, solution become basic. Why solution become basic? Basic due to formation of NaOH or KOH.
ये यहाँ पे बन रहा है ना आपका फॉर्मूला में, ये दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द पार्ट। ठीक है, थर्ड वन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। takes place in this reaction. Right, because reaction is free radical reaction. Reaction is a free radical reaction. ये भी हो गया। चलिए, कैसे फ्री रेडिकल यहाँ पे हो रहा है, कैसा बन रहा है यहाँ पे रिएक्शन देखो। पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे हो रहा है वो देखो यहाँ पे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, if I'm taking example of this CH3 CH2COOK, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया मैंने H2O। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट तो बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में एक और प्रोडक्ट बन रहा है, that is what CH2 double bond CH2 plus CH3CH2। so 2 and 3 और what disproportionation प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट नंबर 2 है, देखो ये कैसा है, 1 है, ये कैसा है, 2 है, और ये कैसा है, 3 है। तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे। so this two product and third product is called what, disproportionation product, that is called what, disproportionation product, राइट। क्योंकि आप देख रहे हो ये जो रिएजेंट है, इसी में एक में क्या हो रहा है, ये निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, दैट बिकम व्हाट, ऑक्सीडेशन, और एक में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दैट बिकम व्हाट, रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है एक ही मॉलिक्यूल में, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे व्हेन यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस रिएक्शन, यू विल गेट दिस, one molecule go for this what, oxidation, and one molecule go for what, reduction। ठीक है, सेम। अब इसका जरा मैकेनिज्म देखते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लो आप, नोट ऑन दिस पार्ट, Kolbe reaction properly।
चलिए आगे चलते हैं, इसका मैकेनिज्म पार्ट दिखाते हैं, मैकेनिज्म पार्ट कैसा है इसका। सी द मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दिस कोल्बे रिएक्शन, ध्यान से देखते हैं इसको। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है इसका मैकेनिज्म पार्ट, देखिए। तो स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, स्टेप वन, सबसे पहले ये जो सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, राइट, जैसे सॉल्ट में कैसा कैटायन और एनायन होता है, तो कैसा लिखेंगे हम लोग, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बन जाएगा फ्री रेडिकल में। कैसे, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने को ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। सो आफ्टर दिस ऑक्सीडेशन इट बिकम व्हाट, फ्री रेडिकल। ऐसा कुछ हो गया फ्री रेडिकल यहाँ पे। माइनस था, यहाँ पे फ्री रेडिकल होगा, ठीक है। अब होगा क्या, नेक्स्ट जो स्टेप होगा दैट इज व्हाट, डी कार्बोक्सिलेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डी कार्बोक्सिलेशन। जरा ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डी कार्बोक्सिलेशन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, डी कार्बोक्सिलेशन। इन डी कार्बोक्सिलेशन, सी दिस, ये देखो इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जरा ध्यान से देखो इसको। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ऑलरेडी। हाँ, ये होगा क्या, यहाँ पे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर एंड दिस वन इलेक्ट्रॉन विल आल्सो शिफ्ट हियर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे और ये निकल जाएगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये फ्री रेडिकल बन गया। तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, देखिए, आर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको समझ में आ रहा है ना, ये दोनों बॉन्ड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के डबल बॉन्ड बना दिया, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अल्काइल फ्री रेडिकल विल फॉर्म हियर। दिस इज व्हाट, अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल, दैट इज फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, किसका बेटा, अल्काइल का। अल्काइल फ्री रेडिकल इज फॉर्म। अब जैसे ये फॉर्म हो गया, तो अब रिएक्शन देखो कैसे होगा, एट एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है ना। एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, देखो यहाँ। सो एनोड का रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे हमेशा। तो क्या राइट हियर, ऑक्सीडेशन of acid anion takes place at anode. Takes place at anode, ठीक है। स्टेप 2 देखते हैं यहाँ पे। स्टेप 2 कैसे होगा, स्टेप 2 देखते हैं। अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है, कंबाइन विथ अनदर फ्री रेडिकल, कंबाइन विथ एन अदर अल्काइल फ्री रेडिकल।
to give the product. ठीक है, कैसे देगा प्रोडक्ट देखो यहाँ पे. So as I told you, this alkyl free radical combined with the another alkyl free radical and form the product RR. That is what? Alkane. ठीक है. This is the coupling. This is the coupling reaction. Two alkyl group for two alkyl free radical combine and give the alkane, higher alkane. ये कपलिंग हो गया यहाँ पे. ठीक है. एट कैथोड पे क्या हो गया मतलब? एट कैथोड क्या हो गया यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ Na plus or K plus takes place at cathode. ठीक है. जो भी रहेगा, जो भी कैटायन होगा, that will convert as a reduction. तो कैसा होगा यहाँ पे? सपोज 2K यहाँ पे लिया बेटा, यहाँ पे मैंने प्लस, it will gain this electron, क्योंकि ऊपर में इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया वही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा. It from what? 2K. ठीक है. वाटर है यहाँ पे, क्या फॉर्म करेगा ये? 2KOH plus H2 gas. This is the reaction. This is the reaction. Right? चलिए मैकेनिज्म पूरा नोट डाउन कर लो अच्छे से. फुल मैकेनिज्म अच्छे से नोट डाउन करो. फर्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन, and that takes place at what? Anode. And after decarboxylation, alkyl free radical will form. Second step पे क्या हो रहा है? Alkyl free radical combine, and at cathode it form what? Hydrogen gas, because potassium or sodium ion will gain electron, convert into the potassium or sodium radical, and it will combine with the water and form the KOH. That's the process. चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. We write here इंट्रामोलिकुलर कोरबी रिएक्शन. ये कैसा होता है? इंट्रामोलिकुलर कोलबेरी रिएक्शन. इंट्रामोलिकुलर कोलबेरी रिएक्शन. तो इंट्रामोलिकुलर कोलबेरी रिएक्शन कैसे होता है यहाँ पे देखिए. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, CH2 C double bond O minus, and here I'm taking this C double bond O minus. राइट है. ओके. अब होगा क्या यहाँ पे? दैट इज द नंबरिंग. नंबरिंग तो कैसे करें यहाँ पे? 1 2 3 4. So its name is what?
1,4 डाइबेसिक एसिड, 1,4 डाइबेसिक एसिड, 1,4 डाइबेसिक एसिड, ठीक है। अब ये जब जाएगा रिएक्शन के लिए तो क्या फॉर्म करने वाला है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बेटा यहाँ पे, राइट। तो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे यहाँ पे। रिएक्शन जब समझना है यहाँ पे, हाँ। ओ फ्री रेडिकल, हाँ। ये बन गया, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, देखिए प्रोसेस क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, हाँ सीधे। देखो यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है यहाँ पे, जैसा प्रोसेस ऊपर किया तो वही सेम यहाँ पे होने वाला है। देखो यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अब होगा क्या यहाँ पे बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। मैं हाफ फिशिंग हुक बना रहा हूं, मैं दैट इंडिकेटिंग व्हाट, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सेम यहाँ पे ऐसे होगा, अगर ये यहाँ पे आया आधा, ये यहाँ पे आएगा हाफ, राइट, और ये यहाँ पे जाएगा ऐसा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वो क्या बनेगा, प्रोडक्ट देखो सब मैकेनिज्म यहाँ पे बता दिया मैंने, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे, सी दैट प्रोडक्ट। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बन गया बेटा यहाँ पे, प्लस what will get here, 2 carbon dioxide, that is the intramolecular coal based reaction, इंट्रामोलिकुलर। आपको आ रहा है समझ में, यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दैट बिकम व्हाट, इथीन। इथीन। अच्छा, यहीं पे अगर मैं इसको और एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज देखो ये आ जाएगा अल्कीन के प्रिपरेशन में। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सपोज आप ये खुद बताओ क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH ले लिया मैंने और यहाँ पे सेम रिएक्शन कराने जा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द डाई बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जस्ट ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट and send me in the chat box what product you getting here, same reaction। यस इथाइन, वेरी गुड। और कोई जल्दी बताओ मुझे। टेल मी
ओके बेटा, गॉट इट। यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, सॉरी, इथाइन मिल जाएगा। जो सेम प्रोसेस मैंने ऊपर कराया था वही यहाँ पे कराना है। यहाँ पे फ्री रेडिकल बना देंगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। तो और प्रोडक्ट विल बी व्हाट, व्हाइट, जस्ट मिनट। तो प्रोडक्ट बनेगा अपना CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस T2CO2, ठीक है। दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट, राइट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, मिसलेनियस, कुछ और रिएक्शन जो यहाँ पे मिलते हैं जिससे अल्केन हम लोग बना सकते हैं, राइट। मैक्सिमम मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ और मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर द अल्केन्स। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से और मेथड्स हैं। मिसलेनियस मेथड है। चलिए बेटा देखते हैं मिसलेनियस मेथड क्या है, ठीक है। जैसे पहला है मेटल कार्बाइड से, मेटल कार्बाइड, इसमें एल्युमिनियम और बेरिलियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव मीथेन। We write here aluminum aluminum and beryllium carbide on hydrolysis give methane, give methane। कैसे देखो यहाँ पे, जैसे रिएक्शन देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आपको। इफ हम लाइक टेकिंग दिस एल्यूमिनियम कार्बाइड, hydrolysis here, then what will get here, Al OH thrice plus CH4 methane। Similarly, if I'm taking this Be2C H2O, then we'll get what, Be OH twice plus CH4, ठीक है। नाउ बी पार्ट इसका देखेंगे, बैटलॉट सिंथेसिस। अब ये क्या सिंथेसिस है, कैन बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन। प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड इथेन कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पे, चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट। कार्बन रिएक्ट विद द H2 इलेक्ट्रिक आर्क में, हाँ,
इलेक्ट्रिक अर्क से मीथेन कैसे बनाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. तो कार्बन प्लस H2, remember this what, electric arc. Arc. Then we get what, methane, CH4 at 120 degrees Celsius. And here I'm taking this 2 carbon plus 3 hydrogen in presence of electrical arc and heat. Then we'll get what, CH3 and CH2. That is product. Okay. So these are the method of preparation of alkane. ठीक है. शायद एक मेथड में भूल गया था, इसको भी आप नोट डाउन करके लिखो. मे बी शायद लास्ट टाइम बताया था या नहीं, मैं अगर भूल गया हूँ तो ये आप नोट डाउन कर लो. जैसे डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड, शायद बताया था मैंने, मे बी. जरा देख लेना यहाँ पे. डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड मीन्स व्हाट, when sodium salt of fatty acid treated with the soda lime, then it form the alkane, right? So we write here sodium salt of fatty acid undergo decarboxylation right, undergoes decarboxylation when heated with soda lime. सोडा लाइम क्या रिएक्शन देखें यहाँ पे, आर, ओके ओके डोंट वरी. तो मैंने ये करवाया था शायद. तो COONA, इसका सोडा लाइम से हम लोग रिएक्शन कराते हैं, NaOH और CaO का कॉम्बिनेशन है. सोडा लाइम है. ठीक. तो क्या मिल रहा है अपने को यहाँ पे, RH मिल रहा है बेटा यहाँ पे, और क्या मिल रहा है, Na2CO3. ठीक है. यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कार्बन का नंबर यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या मिलता है, कार्बन इक्वल टू n-1. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. नोट डाउन करो. नोट डाउन कर लो बेटा, आगे चलते केमिकल प्रॉपर्टी के लिए.
ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, यस। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली अल्केन इज व्हाट, इनरिएक्टिव, क्योंकि जो सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इट इज व्हाट नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में जब ये बताया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन उसमें बताया था, जो सैचुरेटेड अल्केन होंगे हाइड्रोकार्बन, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं, जैसे हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म मैंने बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेशन देखते हैं क्या है कैसे। कुछ रिएक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहला होता क्या है यहाँ पे कि अल्केन्स आर केमिकली अनरिएक्टिव, राइट। केमिकली इट इज व्हाट, अनरिएक्टिव। और अगर केमिकली अनरिएक्टिव है, इफ इट इज केमिकली अनरिएक्टिव, तो कब होगा अनरिएक्टिव, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि स्पेसिफिक कंडीशन में ये तो हो जाएगा, ठीक है, राइट। क्यों हो रहा है ये, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। सुनो, कोई भी रिएक्शन कब होता है, जब एक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं। कब नहीं टूटेगा, ये ऑर्डिनरी कंडीशन में। इसका मतलब ये है कि अगर ऑर्डिनरी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, तो वहां पे जो अल्केन्स होंगे वो कैसे होंगे, अनरिएक्टिव होंगे। लेकिन कुछ रिएक्शंस ये देते हैं स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे पहला, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दे सकता है। ये कैसे देता है, ये देखते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे ये देता है, देखते हैं, ठीक है। सो वी नो दैट कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मली अल्केन देता है, क्योंकि अल्केन के अंदर जो बॉन्ड है दैट इज व्हाट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, दिस इज व्हाट, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी ये कैसा होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, they undergo homolytic bond fission in presence of heat, otherwise peroxide। normally heat रहता है। so when this reaction carried out in presence of UV light, mainly halogenation, only carbon hydrogen bond undergo for the homolytic bond fusion। both carbon carbon and carbon hydrogen bond undergo homolysis at the high temperature, that is called what, pyrolysis।
ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा देखना यहाँ पे मैं क्या बताने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे अगर मैं देखो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जरा सुनो मेरी बात, मैं क्या लिख रहा हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ओनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, लाइक हाइलोजिनेशन। आपको ये चीज समझ में आ रही है बेटा, क्या मैं बता रहा हूँ। हाइलोजिनेशन में क्या होता है कि नॉर्मली कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, और यहाँ पे हाइलोजन आ जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, दैट इज हाइलोजिनेशन। एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों ब्रेक होता है। आई समझ में। नौ सीधे, here I'm writing this, both carbon carbon and carbon hydrogen bond undergo homolysis at high temperature. That will be what? More than 400 degrees Celsius. Under this condition, carbon carbon bond will break, and that reaction is called what? Pyrolysis. उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? पायरोलाइसिस। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हेलोजिनेशन, मैंने आपको बताया था हेलोजिनेशन का बहुत अच्छे से मैकेनिज्म दिया है मैंने, थोड़ा सा एक रिएक्शन बता देता हूँ मैं आपको। समझना यहाँ पे। हाँ, देखो यहाँ पे हेलोजिनेशन है, बहुत अच्छे से मैकेनिज्म मैंने बताया है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम बाय हाइलोजन एटम, बाय हाइलोजन एटम, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बेटा यहाँ पे RH प्लस X2 विल गिव RX प्लस HX, राइट है। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे ये नोट डाउन कर लिया आपने, मैं आगे चलो। हैव यू नोटेड दिस पार्ट? Left to right. Just write it, then we'll move.
sir, done. ओके बेटा, चलिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको ये पार्ट। चलिए यहाँ से रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैसा होता है? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन एटम order of hydrogen atom in alkane in tertiary. मतलब tertiary carbon hydrogen bond will be more reactive than secondary carbon hydrogen bond. Sorry. And that will be more reactive than primary. 1 degree CH bond. That is the reactivity order of the alkane. ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आयोडीनेशन, जो मैंने शायद वहां पे बताया था कि नहीं बताया था, पता नहीं, देख लेते हैं। That is what iodination. चलिए आयोडीनेशन का रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर सारी कहानी समझ में आएगी। होता क्या है यहाँ पे कि when I'm writing this RH, that is what alkane, treated with iodine, ये फॉर्म करता है बेटा Ri प्लस HI। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे ही HI बनता है, ये दिस इज व्हाट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दिस HI formation in this reaction is what dangerous for this reaction. This is called what strong reducing agent. ये फिर से अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके फॉर्म कर देगा ये, फिर मींस रिवर्सिबल रिएक्शन देता है। दैट इज व्हाट रिवर्सिबल रिएक्शन। दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो नॉर्मल कंडीशन में आयोडीनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे HI का फॉर्मेशन होता है। HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट विल रिड्यूस टू द अल्काइल आयोडाइड एंड अगेन कन्वर्ट इनटू अल्केन एंड आयोडीन। But this iodination can take place. We can write here, that is the important part. Iodination may be carried out in presence of an oxidizing agent. Oxidizing agent such as iodic acid, mercuric oxide, and next one is what? HNO3, that is what? Nitric acid.
These are strong oxidizing agent and in presence of this strong oxidizing agent iodination can take place. कैसे? मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ एक एक करके. देखो यहाँ पे first I'm using iodic acid, so for that purpose we use this 5 mole of alkane and here I'm taking 2 mole of iodine plus HiO3 iodic acid. Then iodination takes place, it form the 5 mole of this Ri. Okay, 5 mole of this Ri alkyl iodide plus और क्या देगा बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 and 2 2 is 4 4 and 1 5 5 I यहाँ पे लग गया और 5H निकला, 5H और 1H 6H plus 3O, it will form what? CH2O. 5 hydrogen and 3 oxygen combine, sorry 6 hydrogen and 3 oxygen combine and form the 3H2O. That is the reaction. This is the reaction. आ रहा समझ में? अच्छा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का लेंगे तो कैसे लेंगे? RH प्लस 2 आयोडीन प्लस HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड. यहाँ पे भी क्या फॉर्म करेगा? 2Ri बन जाएगा और क्या बनेगा? Hgi2 बनेगा बेटा यहाँ पे, मर्क्यूरिक आयोडाइड प्लस HgO. This is the reaction. Suppose here I am going to prepare from alkane plus nitric acid. हाँ, यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा 4I, यहाँ पे 8 और यहाँ पे लेंगे HNO3. We'll get this 8Hi plus NH3 अमोनिया निकलेगा यहाँ पे. Rest of part is what? Water. So we are observing here these oxidizing agents consume the formation of this Hi. Because of that, now its reaction is what? Irreversible. So iodination normal condition give the reversible reaction due to formation of Hi, but in presence of strong oxidizing agent like that mercuric oxide, iodic acid and nitric acid, this reaction can take place irreversibly. Got it? Yes, sir. चलिए नाइट्रेशन की बात करते हैं. नोट डाउन कर लो इसको, आगे चलते हैं. नाइट्रेशन. ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस नाइट्रेशन पार्ट. हाँ, नाइट्रेशन. ठीक है, नाइट्रेशन देखो कैसे होता है. This involve the substitution of hydrogen atom of alkane with
NO2 ग्रुप, ठीक है। तो कैन राइट हियर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर alkane do not react with HNO3. Huh? So alkane react with the vapor of conc HNO3. HNO3 at 450 डिग्री सेल्सियस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस इज नोन एज वेपर फेज नाइट्रेशन। ठीक है बेटा, रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे। RH प्लस HNO3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, रिएक्शन समझाने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 400 to 500 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा। यहाँ से नॉर्मल कंडीशन में लोग बोलेंगे कि NO2 अटैच हो गया और H2O निकल गया यहाँ पे, राइट। H2O will eliminate and H will, sorry, NO2 will attach. That is called what? Nitration. नेक्स्ट रिएक्शन देखो यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखते हैं। जैसे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? सिंस द रिएक्शन इज कैरिड आउट एट द हाई टेम्परेचर, carried out at the high temperature, the carbon-carbon bond of alkanes break। मैंने बोला था कि 400 से अबव जहां पे हुआ टेम्परेचर, तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, ब्रेक ड्यूरिंग द रिएक्शन। And because of that, mixture of nitroalkane is formed। मिक्सचर ऑफ नाइट्रोअल्केन इज फॉर्म। कैसे होगा जरा देखो बेटा, यहाँ पे क्या मैं बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा देखो कि जब भी मैंने हायर अल्केन ले लिया, राइट, सपोज मैंने प्रोपेन ले लिया यहाँ पे, पहले समझ लो इसको, प्रोपेन ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया HNO3 से, हाई टेम्परेचर पे किया, राइट, 423 टू 628 ऐसा लगता है हम लोग, तो 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस लिख दिया मैंने। प्रोडक्ट क्या बनने जा रहा है देखो यहाँ पे,
तो पहला जो होगा नाइट्रोप्रोपेन होगा, जैसे मैंने ये लिख दिया, NO2। दूसरा चांसेस क्या है कि यहाँ पे सपोज ये बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा, यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, मतलब नाइट्रोमीथेन नाइट्रो इथेन दोनों मिलेंगे। यहाँ पे दूसरा चांस क्या है कि एक बार फर्स्ट नंबर पे एक बार सेकंड नंबर पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। तो देखो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे एक और चांस यहाँ पे हो गया, हियर दिस नाइट्रो ग्रुप अटैच एट द सेकंड कार्बन, दैट इज आल्सो पॉसिबल ना, so we get this one. In third case, we are going to get this nitroethane. Sorry, I'm writing this. And nitromethane. ठीक है, नेमिंग लिखते हैं इसका। दिस इज व्हाट वन नंबरिंग IUPAC करके देते हैं यहाँ पे। तो वन नाइट्रो प्रोपेन, प्रोपेन नाइट्रोइथेन एंड नाइट्रोमीथेन। परसेंटेज कितना होगा? 25% इसका होता है, इसका होता है 40%, इसका होता है 10% और इसका होता है बेटा 25%। जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट। हाँ, नोट डाउन नाइट्रेशन फुल पार्ट। हाँ, ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट। तो आप देखो यहाँ पे परसेंटेज कैसा है, यहाँ पे 25%, 40%, 10% 25%, राइट ना। मैकेनिज्म समझोगे तो आपको समझ में आएगा। हायर परसेंटेज ऑफ टू नाइट्रोप्रोपेन is obtained due to the formation of
secondary free radicals as intermediate. हाँ? कैसे होगा? तो वी कैन आइडिया नाइट्रेशन में कैसा होता है फ्री रेडिकल का, तो वी कैन आइडिया देखो यहाँ पे नाइट्रेशन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. मैकेनिज्म कैसे देखो यहाँ पे HONO2 HO NO2, ठीक है, या फिर लिया मैंने C3H7H OH फ्री रेडिकल दैट विल फॉर्म व्हाट, समझो कैसा बन रहा है यहाँ, सॉरी दैट विल बी व्हाट C3H7 ना, C3H7 फ्री रेडिकल प्लस H2O. अब होगा क्या, ये जो C3H7 फ्री रेडिकल है that will be combined with what, NO2 free radical, and it from what, C3H7 NO2. आप देख रहे हो यहाँ पे ना कैसा हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूंगा यहाँ पे 40% क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखो ना बेटा, यहाँ पे समझो इसको, सपोज मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा. अब यहाँ पे अपने पास चांसेस था ये वाला हाइड्रोजन या फिर ये वाला हाइड्रोजन निकालने का, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे. अगर ये निकला यहाँ से तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, दैट इज व्हाट प्राइमरी, और यहाँ से ये निकला तो ये कैसे बनेगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल. सेकेंडरी फ्री रेडिकल के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज व्हाट मोर परसेंटेज. आई होप अंडरस्टूड दिस पार्ट. यस, से समथिंग. यस, गुड. चलिए नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस सल्फोनेशन. ये नोट डाउन करो, सल्फोनेशन चलते हैं अभी. सल्फोनेशन, चलिए हो गया बेटा, आगे देखिए दिस पार्ट. Sir, I have to write. ओके ओके, वेट, राइट इट. ओके, नोट डाउन फास्ट.
They're done. हो गया बेटा? Yes, sir. हाँ चलिए, सल्फोनेशन की बात करते हैं ना। देखिए कैसे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है। अच्छा, सल्फोनेशन कैसा होगा? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन atoms of alkanes by SOCH is known as सल्फोनेशन, ठीक है। अच्छा, alkane react with H2SO4 or olein. Olein is what? That is the H2S2O7, ठीक है। The branch lower alkanes and higher alkanes react to give alkyl sulfonic acid. Yes, yes, oleum, oleum, okay, alkane sulfonic acid, ठीक है। देखिए कैसे मिलने वाला है यहाँ पे। CH3 say CH3, here is what CH3, and here SO3H plus H2O. This is what 2-methyl propane. Two methyl propane, 2 sulfonic acid. That is the replacement. हाँ, यहाँ पे एक important point हम लोग नोट करते हैं, that is what reactivity order. हाँ, sulfonation is tert hydrogen
secondary hydrogen is there as primary hydrogen. हाइड्रोजन ठीक है। कैसे होगा इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ, पहले ये देख लो। तो अगर टर्शियरी हाइड्रोजन जैसे ये टर्शियरी हाइड्रोजन इसको रिप्लेसमेंट इसका रिप्लेसमेंट के चांसेस ज्यादा है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, दैट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट और नोट डाउन करते हैं हम लोग। देखिए जैसे सल्फोनेशन में दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट which I'm going to write replacement ऐसा बोलेंगे यहाँ पे। This reaction is given mainly by those alkanes which have six or more than six carbon। अब बोलोगे आपने सर लोअर में दिखा दिया, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होता है, लोअर अल्केन्स also give this reaction but only at tertiary carbon। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर लोअर मेंबर है तो प्राइमरी सेकेंडरी पे नॉर्मली किस पे, जहां से मैंने एग्जांपल बताया आपको, दैट इज द टर्शियरी कार्बन एंड विल गिव द रिएक्शन। बट हायर अल्केन अगर है हेक्सेन या फिर हेप्टेन उससे ज्यादा कार्बन के, तो वहां पे ये सल्फोनेशन हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सिक्स कार्बन ले लिया बेटा यहाँ पे, दैट इज व्हाट एन हेक्सेन। समझो इसको जरा सा, एन हेक्सेन यहाँ पे एक हाइड्रोजन में अटैच कर दिया क्योंकि मुझे वही हाइड्रोजन मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। फॉर रिप्लेसिंग दिस हाइड्रोजन आई एम राइटिंग दिस वन। हाँ, होगा क्या, यहाँ पे कॉन्क लिया मैंने, H2SO4, so our product will be what, the heat। यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा अपने को, ये SO3H, its name is what, one सल्फोनिक एसिड, एन हेक्सेन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट डाउन करेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट, सोडियम एंड पोटेशियम salts of alkane sulfonic acid
sodium and potassium salts of alkane sulfonic acid are detergent. इसी को हम बोलते हैं are detergent. ठीक है, मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सोडियम और पोटेशियम लगा देंगे, दैट बिकम अ डिटर्जेंट सॉल्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं. इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, छोटा सा मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ पे. देखिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म पार्ट. सल्फोनेशन का मैकेनिज्म पार्ट कैसे बनाते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है. ठीक है, सो गोइंग टू राइट दिस. Sulfonation follows free radical mechanism. सारे जो मैंने बताया, हाइलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, सब किसके मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल. कैसे यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे पहले H2SO4 डिसोसिएट होगा. कैसा हो रहा है, होमोलिटिकली. इसीलिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के लिए. यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा फिर से OH ही बनेगा, जैसा वहां पे नाइट्रेशन में बन रहा था. तो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन में आप देख रहे हो कि OH जो फ्री रेडिकल बन रहा है, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, SO3H फ्री रेडिकल. राइट. अब डेफिनेटली जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एज इट इज होगा कि यहाँ पे C6H13H लिया मैंने, ये भी फ्री रेडिकल बनाएगा. इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द अटैक ऑफ दिस फ्री रेडिकल. अब ये OH फ्री रेडिकल इसको लेके चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है. देखिए मैं बता देता हूँ आपको. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा. ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन होकर के H2O बना देगा. तो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, C6H13 फ्री रेडिकल प्लस H2O. अब डेफिनेटली ये दोनों फ्री, क्योंकि ये फ्री रेडिकल तो कंबाइन हो गया, दिस फ्री रेडिकल विल कंबाइन एंड फॉर्म द benzene sulfonic acid. So this C6H13 free radical will combine with the SO3H free radical and it give the product C6H13SO3H. ये प्रोडक्ट बन गया बेटा. राइट है, नोट डाउन कर लो इसको पूरा. क्या डिक्रीज दिस, सॉरी, हाँ ये नोट डाउन कर लो. फुल सल्फोनेशन. हाँ, चलेगा, स्क्रॉल अप करूं मैं. Which part is remaining, I don't know.
मैं स्क्रॉल अप करता हूँ, इसको नोट डाउन करो फटाक से। ओके बेटा, ये चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, क्लोरोसल्फोनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन। क्लोरोसल्फोनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेड रिएक्शन। दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, रेड रिएक्शन। क्या होता है यहाँ पे देखो, ठीक है, व्हाट इज रेड रिएक्शन। So first we write some statement here. The reaction with a mixture of SO2 and Cl2 at ordinary temperature in the presence of UV light is called chlorosulfonation. 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 Okay. Normally this reaction is used for preparing the detergent. ठीक है, जैसे रिएक्शन देखिए यहाँ पे, C3H8, इसका रिएक्शन हो गया SO2 प्लस Cl2, UV लाइट के प्रेजेंटेशन में हो गया। So what will get here, C3H7
SO2Cl2 plus HCl. Propyl sulfonyl chloride, that is what propyl sulfonyl chloride, right? Now further hydrolysis of alkane sulfonyl chloride give alkane sulfonic acid. ठीक है बेटा, तो क्या बना यहाँ पे C3H7 SO2Cl SO2Cl, that not be Cl2, that will be Cl, sorry, Cl. After hydrolysis, what will get here? C3H7 SO3H plus HCl. This is propane sulfonic acid. ठीक है बेटा, तो इतनी चीजें हो गई आपकी, राइट? अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट रिएक्शन, एक दो और रिएक्शन है, मीन्स 5-10 मिनट 15 मिनट का, मैक्स मैक्स हाफ एन आवर का. उसके बाद फिर अल्केन पार्ट खत्म, देन वी स्टार्ट दिस अल्कीन्स. ठीक है, फिर ऐसे ही अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड डाइंस, ये सब कर लेंगे तो हमारा हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद अल्काइल है, जो 12th का पार्ट होगा वो स्टार्ट होगा. तो ऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट आपका 11th के पार्ट अभी 2 लेक्चर में, 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू.